Welcome to VLearn. This is session 4 of ASP.NET, and today we are going to cover different topics like what is ASP.NET, ASP.NET Web Forms, Classic ASP, Dynamic Page in Classic ASP, Dynamic Page in ASP.NET, ASP.NET versus Classic ASP. Apart from this, we are also going to cover the limitations in Classic ASP and ASP.NET server controls that we are going to discuss, ASP.NET HTML server and other controls, right? Now let's cover one by one. ASP.NET Web Forms. What is this? Now let us cover it. To dynamically generate the web pages. When we use the word dynamically, it means what? It means during runtime. Suppose you have opened some website and आपको एक particularly उसी टाइम पर आपको रन टाइम पे, एग्जीक्यूशन टाइम पे ही कुछ पेज जनरेट करने हैं. तो इस पर्टिकुलर फेज के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं डायनामिकली, मीन्स ड्यूरिंग रन टाइम. सो अगेन वी आर कमिंग बैक टू आवर टॉपिक दैट आई एम गिविंग यू द आंसर ऑफ दैट व्हाट इज ASP.NET वेब फॉर्म. क्या होता है ASP.NET वेब फॉर्म? सो टू डायनामिकली जनरेट द वेब पेजेस, द ASP.NET वेब फॉर्म्स पेज फ्रेमवर्क is a scalable common language runtime programming tool. किसको हम प्रोग्रामिंग टूल बोल रहे हैं? ASP.NET वेब फॉर्म पेज को, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. वो एक प्रोग्रामिंग मॉडल है. दैट मॉडल कैन बी यूज ऑन द सर्वर. एक ऐसा प्रोग्रामिंग मॉडल है जिसको हम सर्वर पर यूज कर सकते हैं. एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्विसेज इट कैन प्रोवाइड यू? यू कैन थिंक ओवर इट. यस, it has the ability to use reusable and create user interface control. हमारा जो ASP.NET वेब फॉर्म्स कंट्रोल है, ये रीयूजेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है. इसके अलावा इसकी हेल्प से आप कुछ यूजर इंटरफेसेस भी डेवलप कर सकते हैं. दैट कैन एनकैप्सुलेट कॉमन फंक्शनैलिटीज and thus reduce the amount of the code that a page developer has to write. जब आप किसी चीज को reuse कर पाते तो obviously you are reducing the total development cost of that particular software because it supports the reusability. Which supports the reusability? ASP.NET web form, right? क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर एनकैप्सुलेट्स होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज को आप को क्लब कर देते हैं, जिससे हमारा राइटिंग एफर्ट रिड्यूस हो जाता है, राइट? नाउ द एबिलिटी फॉर द डेवलपर्स टू क्लियरली स्ट्रक्चर देयर पेज लॉजिक इन एन ऑर्डरली फैशन. दिस पर्टिकुलर वेब फॉर्म ASP.NET वेब फॉर्म हैज द एबिलिटी फॉर द डेवलपर टू क्लीनली स्ट्रक्चर देयर पेज लॉजिक इन एन ऑर्डरली फैशन. हमारे डेवलपर्स का सारी चीज़ों को अच्छे से स्ट्रक्चर कर पाते हैं, लॉजिक्स को ऑर्डर वे में डिफाइन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ASP.NET वेब फॉर्म. द एबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट टूल्स टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग व्हाट यू सी व्हाट यू गेट डिजाइन सपोर्ट फॉर द पेजेस. ASP.NET वेब फॉर्म हैज ऑल द डेवलपमेंट टूल किट विद देम so that they can help in designing of what you see what you get kind of pages. Now let's talk about the classic ASP. Active server pages, that is ASP, has been around for several years, and with ASP executable codes can be placed inside the HTML pages. ASP में हम HTML के कोडिंग को इंसर्ट कर सकते हैं. Classic ASP is the previous version of ASP. राइट, यानी कि पहले मार्केट में ASP आया, फिर क्लासिक ASP आया, उसके बाद हमारा ASP.NET आया. ये सीक्वेंशियली. I will ask this sequence in the later part of our session, right?
So what was the first part? ASP, then classic ASP, then ASP.NET. So further, ASP.NET is not fully compatible with classic ASP. ASP.NET is not fully compatible with classic ASP, but most classic ASP pages will work fine as ASP, right? So .NET pages, ASP.NET pages, if you will make only minor changes, then हमारे पेजेस काम करना शुरू कर देंगे, राइट? यानी कि हर वो पेज जो हमारा क्लासिक ASP का होता है वो ASP.NEट पे काम नहीं करता, आपको माइनर चेंजेस करने पड़ते हैं, देन इट विल वर्क. Dynamic page in classic ASP. Now let's talk about that, how to create the dynamic page in the classic ASP. We have added some executable code to the previous example to demonstrate that how ASP can display pages with dynamic content. Now I am providing you some coding part to reflect that how to create the dynamic page in classic ASP, right? हमने अभी बात की थी कि ASP.NET की में बहुत सारे HTML टैग यूज़ किए जाते हैं, तो लेट्स हम उसका एक कोडिंग पेज कवर करते हैं. सबसे पहले हमने क्या लिया, कि HTML टैग लिया, बॉडी BG कलर का सेट कर दिया, क्या येलो कलर सपोज, सेंटर टैग यूज़ किया, हेडिंग 2 टैग यूज़ किया, P फॉर पैराग्राफ टैग यूज़ किया. अब इसमें दिस इज द स्पेसिफिक लाइन कमिंग फॉर जनरेटिंग द डायनेमिक पेज. P टैग के साथ, P टैग आपने एंगुलर ब्रैकेट्स में क्लोज किया. अगेन यू आर स्टार्टिंग एन एंगुलर ब्रैकेट विद मॉड्यूलर सिंबल, और अब आप लिख रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट नाउ फंक्शन, एंड दिस मॉड्यूलर साइन के साथ इस पूरे टैग को P टैग के साथ क्लोज कर रहे हैं. सेंटर टैग भी क्लोज किया, बॉडी टैग भी क्लोज किया, एंड HTML टैग भी क्लोज किया. दिस कोड विच इज प्रेजेंटेड इनसाइड द टू मॉड्यूलस टैग इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर. मीन्स अगर आपको आइडेंटिफाई करना कि किस टैग से पता चलेगा कि ये टैग हमारा एग्जीक्यूट होगा सर्वर पे, तो वो टैग जो आपके दो मॉड्यूलर सिंबल्स के बीच में जो आपका टैग है वो एक्चुअल में टैग सर्वर पर रन होता है. एंड रिस्पॉन्स डॉट राइट वर्ड मैंने अभी एक यूज किया था जब मैं कोडिंग बता रही थी. सो दिस बेसिकली टैग इज फाइनली यूज्ड टू शो एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, राइट? इस टाइप से हम उसको शो कर पाते हैं. इसके बाद हम कवर करेंगे जिस तरह से अभी हमने एक सर्वर पे एक कंट्रोल बनाया, उसको रन करके भी देखा, ठीक है. अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं. रिस्पॉन्स डॉट राइट जो है एक ऐसा ASP कोड है दैट इज यूज फॉर राइटिंग समथिंग टू द HTML आउटपुट स्क्रीन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायनेमिक पेज इन ASP.NET. एक हम प्रोग्राम, इसको मैं छोटा सा प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं. हमने एक HTML टैग बनाया, बॉडी BG कलर के थ्रू एक टैग बनाया, वही सेंटर टैग लिया, हेडिंग 2 टैग लिया, सेंटर टैग को क्लोज किया, बॉडी टैग को क्लोज किया. If you are interested to try it yourself, then save the code in a file called dyn dynamic, नाम कुछ भी हो सकता है, dynamic page dot aspx, right? ASP.NET में जो फाइलें बनती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, dot aspx. Now let's compare ASP.NET versus classic ASP. The previous example did not demonstrate any clear-cut difference between the ASP.NET and the classic ASP. As you can see from the two latest example that there are no difference between the two ASP and ASP.NET pages. ASP.NET server controls. The spaghetti code problem described above with server control is solved using ASP.NET. Server controls are the tags that are understood by the server. जिन टैग्स को हमारा सर्वर अंडरस्टैंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर कंट्रोल. सो सर्वर कंट्रोल्स आर द टैग्स दैट आर अंडरस्टूड बाय द सर्वर. सो बेसिकली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सर्वर कंट्रोल्स. फर्स्ट वन इज HTML server control. This is the traditional HTML tags. Second one is web server control.
This is the new ASP.NET tags, and the last one is validation server control. This is used for input validation. ASP.NET HTML server control. HTML tags are the HTML server control that are understood by the server. HTML tags किसका एग्जाम्पल है? हमारे सर्वर कंट्रोल का एग्जाम्पल है. वो सर्वर कंट्रोल that is understood by the server. In ASP.NET files, AHT elements are by default treated as a text file. HTML को एलिमेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है? टेक्स्ट फाइल की तरह. Add a run at server attribute to the HTML element to make these elements programmable. हम एक run at is equal to server attribute करके एक टैग यूज करते हैं. That helps to make these elements programmable. This attribute indicates that the element should be treated as a server control, and the ID attribute is added to identify the server control. To manipulate the server control at runtime, the ID reference can be used. Right? Now, here you have to note one point, that all the HTML server control must be present within a form. सारे के सारे हमारे सर्वर कंट्रोल किसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए? फॉर्म टैग के अंदर. एंड इट शुड रन विद run at server attribute. The run at server attribute indicates that the form should be processed on the server, and it also indicates that the enclosed control can be accessed by the server script. हम यहाँ पे जो अभी हमने run at server पे एक एट्रीब्यूट यूज किया है, सर्वर के अराउंड दोनों में डबल पोर्ट्स लगे हुए हैं. तो जो डबल पोर्ट्स में होता है वो सर्वर स्क्रिप्ट को इंडिकेट करता है, और जो उसका जो टैग नेम है वो हमें सर्वर को रिप्रेजेंट करता है. Right? Another, in the next part of this session we are going to cover some ASP.NET web server control. Web server control क्या होते हैं? They are the special ASP.NET tags that are understood by the server. ये कुछ स्पेशल टैग्स होते हैं, सर्वर कंट्रोल टैग्स होते हैं, जो कि हमारा that is basically understood by the server. Like HTML server control, web server control are also created on the server and they require the run at server attribute. जिस तरह से HTML सर्वर कंट्रोल को रन करने के लिए हमें रन एट सर्वर का एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ती है, सिमिलरली वेब सर्वर कंट्रोल्स को भी रन एट सर्वर एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग रन टाइम. एंड ऑल्सो दिस कंट्रोल डू नॉट नेसेसरली मैप टू एनी एग्जिस्टिंग HTML elements, and they may represent more complex elements. Right? Now let's talk about the ASP.NET validation server control. Now to validate user input, यूजर जो भी हमारा इनपुट करता है किसी भी वैल्यू को, चाहे वो न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है, फ्लोटिंग वैल्यूज है, डेसिमल वैल्यूज है, फ्रैक्शनल वैल्यूज है, वट एवर इट इज, उसके ऊपर हमें चेकिंग करने के लिए कुछ वैलिडेशन अप्लाई करने पड़ते हैं. तो उसके रिगार्डिंग वैलिडेशन सर्वर कंट्रोल हमारे पास है, जो कि ASP.NET सपोर्ट करता है. सो टू वैलिडेट यूजर इनपुट, वैलिडेशन सर्वर कंट्रोल इज बेसिकली यूज्ड. इट विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज टू द यूजर इफ द यूजर इनपुट डज नॉट पास वैलिडेशन. अगर वैलिडेशन का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो वैलिडेशन सर्वर कंट्रोल एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं, एक एरर मैसेज डिस्प्ले करते हैं रादर to the user so that they can understand the things. By default, page validation is performed when a button, image button, link button or link button is controlled. Control is clicked, and you can prevent validation when a button control is clicked by setting the causes validation property to false. Right? The syntax for creating a validation server control is ASP कंट्रोल नेम, जो कि आप पूरे कंट्रोल नेम को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर, इज इक्वल टू सम आईडी, जो कि रन एट सर्वर एट्रीब्यूट को यूज करके आपने करना है. एंड इफ वैलिडेशन फेल्स हो जाती है, सॉरी, देन द टेक्स्ट, द वैल्यू मस्ट बी फ्रॉम 1 to 100 एंड इट विल बी डिस्प्लेड इन द रेंज वैलिडेटर. अगर आपकी वैलिडेशन फेल हो जाती है तो वो जो टेक्स्ट है वो 1 और से 100 की वैल्यू की रेंज के बीच में कहीं पर भी डिस्प्ले हो जाएगा. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? राइट? इसके अलावा वी आर
going to cover some HTML controls that helps you to create an ASP.NET web page. According to this, first tag is HTML. पूरा का पूरा कि हम प्रोग्राम डेवलप करने जा रहे हैं। आपने सबसे पहले लिखना है HTML, जो कि एक हमारा टैग है, HTML टैग है। बॉडी टैग आप बनाएंगे। अब हम वैलिडेशन कंट्रोल का फॉर्म रन एट इज इक्वल टू सर्वर से इसको क्लोज कर देंगे टैग को। देन यू विल आस्क फॉर सम वैल्यू, दैट इज एंटर अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। देन ASP टैग स्टार्ट करेंगे आप। टेक्स्ट बॉक्स ID इज इक्वल टू tbox1, इट शुड रन एट सर्वर, उसको क्लोज कर देंगे। ब्रेक टैग यूज करेंगे। ASP.NET बटन टेक्स्ट यूज करेंगे। सबमिट का बटन बनाएंगे उसके ऊपर। रन इट एट्रीब्यूट को यूज करेंगे इसको, उसके अंदर हम लिखेंगे कोई जो भी हमारा सर्वर का पाथ है। अगेन यू विल यूज द BR टैग। देन यू आर गोइंग टू यूज ASP range validator controls to validate text box 1। मिनिमम वैल्यू उसमें क्या रखेंगे? अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल इट शुड बी 1 एंड मैक्सिमम इट शुड बी 100। उसका डेटा टाइप की वैल्यू क्या था? दैट वाज इंटीजर। फिर हम क्या यूज करेंगे? इनेबल क्लाइंट स्क्रिप्ट को फॉल्स सेट कर देंगे। टेक्स्ट की वैल्यू, आप क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो आप टेक्स्ट टैग के अंदर डालेंगे। सपोज आपने लिख दिया द वैल्यू मस्ट बी फ्रॉम 1 to 100। देन रन एट सर्वर से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर्म टैग को आप क्लोज कर देंगे, बॉडी टैग को आप क्लोज कर देंगे एंड HTML टैग को आप क्लोज कर देंगे, राइट। इसके अलावा वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेब सर्वर कंट्रोल। The syntax for creating a web server control is ASP colon control name is equal to some ID and UNAT is equal to डबल कोट्स में आया आपका सर्वर, और आप उस टैग को क्लोज कर देंगे। In the following example we declare a button that is server control in an ASPX file and then we create an event handler for the click event which changes the text on the button, right। script tag आप यूज करेंगे run at is equal to server करके। सबमिट का बटन बनाएंगे, उसके ऊपर आप कुछ भी एक ऑब्जेक्ट का नाम देना होगा आपको, जिससे सारे इवेंट्स एक्टिवेट किए जा सके। बटन डॉट टेक्स्ट पे आप लिख देंगे यू क्लिक्ड मी, मीन्स ये वो मैसेज है जो डिस्प्ले होगा। आपका स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो जाएगा। फिर आपने HTML टैग को शुरू करना है, बॉडी टैग को शुरू करना है। फॉर्म रन एट सर्वर, इसके बगैर हमारा कोई भी सर्वर कंट्रोल रन नहीं हो पाएगा सर्वर पर। ASP कोलन बटन ID जो भी हमने नाम रखा था, बटन 1 टेक्स्ट इज इक्वल टू क्लिक मी, इसको क्लिक मी को आप डबल कोट्स में लेंगे। रन एट डबल कोट्स ऑन क्लिक इज इक्वल टू सबमिट। फॉर्म टैग को क्लोज करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज करेंगे यार, HTML टैग को क्लोज करेंगे, राइट। सो इस तरह से आपने पूरे तीनों के तीनों कंट्रोल्स, कौन से तीनों कंट्रोल्स थे हमारे इसमें जो हमें कवर करने थे आज, किए हैं हमने बेसिकली आज कवर। कौन कौन से सर्वर कंट्रोल्स थे हमारे? 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ द सर्वर कंट्रोल। फर्स्ट वन वाज HTML सर्वर कंट्रोल, वेब सर्वर कंट्रोल एंड वैलिडेशन सर्वर कंट्रोल, राइट। HTML सर्वर कंट्रोल में हम सारे HTML के टैग्स को यूज करते हैं। वेब सर्वर कंट्रोल में हम न्यू ASP.NET के टैग्स को यूज करते हैं। एंड वैलिडेशन सर्वर कंट्रोल में हम इनपुट वैलिडेशन अप्लाई करने वाले कंट्रोल्स को यूज करते हैं, राइट। सो इन टूडेज सेशन we have covered different topics like ASP.NET Web Forms, Classic ASP। हमने एक डायनेमिक पेज क्रिएट किया ASP.NET में भी और एक डायनेमिक पेज क्रिएट किया Classic ASP में भी। फिर हमने थोड़ा सा पार्ट डिस्कस किया था ASP.NET और Classic ASP में डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग। We have discussed some limitations in Classic ASP also। ASP.NET सर्वर कंट्रोल के एग्जाम्पल हमने कवर किए।
ASP.NET HTML सर्वर कंट्रोल्स के एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं, राइट. So with this we are going to finish this session, and at last I hope you will be able to give the answer of these two questions. Question number 1 is, how can you create web server? Another question is, give an example of custom validator, right. With this our session is going to be finished.